السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے پرائم ٹائم میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ میں ہوں فرزان احمد۔ سب سے پہلے پیش ہے پرائم ٹائم کی ہیڈ لائنز۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اوساکا ایکسپو میں تلنگانہ رائزنگ وفد کی قیادت کی۔ عالمی ایونٹ میں شرکت سے روشن کیا ملک کا نام۔ تلنگانہ حکومت نے ربی سیزن کے لیے دھان کی خریداری کا بنا لیا منصوبہ۔ 70 لاکھ میٹرک ٹن دھان کی خریدی کا نشانہ مقرر۔ ریاستی وزیر سول سپلائز اتم کمار ریڈی کا بیان۔ کانگریس کے رکن پارلیمان کرن کمار نے BRS کی سلور جوبلی تقریبات کا اڑایا مضحکہ۔ کہا کہ کیا TRS کی تقریب ہے یا پھر BRS کی۔ وقف ترمیمی ایکٹ کے خلاف محبوب آباد میں ہوا بڑا احتجاج۔ مظاہرین نے مودی حکومت کے خلاف کی جم کر نعرے بازی۔ وزیراعظم مودی منگل کو سعودی عرب کے شہر پہنچیں گے جدہ۔ 4 دہائیوں میں کسی بھی ہندوستانی وزیراعظم کا جدہ کا پہلا دورہ۔ اقتصادی تعلقات میں مزید استحکام کی امید۔ مہاراشٹرا اسمبلی الیکشن پر راہل گاندھی نے پھر اٹھائے سوال۔ امریکہ کے بوسٹن میں کیا عوام سے خطاب۔ اور کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ مسیحی برادری میں سوگ کا ماحول۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اور پیش خبروں کی تفصیلات شروعات کریں گے بڑی خبروں سے۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اوساکا ایکسپو میں سرکاری تلنگانہ رائزنگ وفد کی قیادت کی، جس نے عالمی ایونٹ میں اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ریاستی وزیر ڈی سریدھر بابو کے ہمراہ جاپان میں بھارت پویلین کا افتتاح کرنے والے اور ایکسپو میں سرکاری طور پر تلنگانہ زون کی نقب کشائی کرنے والے پہلے ہندوستانی معزز بننے کا اعزاز حاصل کر چکے ہیں۔ تاریخی دورہ اس اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے کہ پہلی بار تلنگانہ کے کسی چیف منسٹر نے جاپان کا سفر کیا اور اوساکا ایکسپو میں شرکت کی ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی سرمایہ کاروں کو تلنگانہ میں راغب کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ BRS منسی کویتا نے چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی پر الزامات لگائے اور یہ بھی کہا کہ کانگریس کی قیادت پر ED کے چارج شیٹ کے حوالے سے ریونت ریڈی نے ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا اور خاموشی طاری رکھی ہے۔ Both Sonia ji and Mr. Rahul Gandhi, surprisingly our Telangana Congress Chief Minister has been very silent. Although he is on an international trip, I believe internet will definitely work in Japan or Twitter will certainly work in Japan. We were expecting that there will be a statement from the Chief Minister, but it is very interesting politics happening in Telangana. Everybody across the country in Congress party protesting about their top leadership being named in ED except our Chief Minister. So that is why I have always been calling him the RSS Chief Minister. Thank you. Jai Telangana. تلنگانہ کے وزیر سول سپلائز اتم کمار ریڈی نے کہا کہ حکومت نے ربی سیزن کے لیے دھان کی خریدی کا منصوبہ بنایا، جس کے تحت 70 لاکھ میٹرک ٹن دھان کی خریدی کا نشانہ مقرر کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں 57 لاکھ ایکڑ اراضی پر بھاری دھان کی پیداوار ہوئی اور تلنگانہ دھان کی پیداوار اور خریدی میں ملک کی نمبر 1 ریاست بن گئی ہے۔ اتم کمار ریڈی نے ضلع کلکٹران کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کی تھی، جس میں دھان خریدی کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو غیر موسمی بارش سے چوکسی کی ہدایت بھی دی اور کہا کہ غیر موسمی بارش سے فصلوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اتم کمار نے کہا کہ چاول کی غیر قانونی منتقلی کو روکنے ریاست کے سرحدی چیک پوسٹ پر CCTV کیمرے نصب کیے گئے۔ باریک چاول کی پیداوار پر کسانوں کو فی کنٹل 500 روپے بونس بھی ادا کیا جا رہا ہے۔ کانگریس تلنگانہ حکومت کے اقلیتی مشیر محمد علی شبیر نے دعویٰ کیا کہ سب سے پہلے وقف بل کی تلنگانہ حکومت نے مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ BJP جب سے اقتدار میں آئی صرف ہندو مسلم کی سیاست کر رہی ہے۔ ملک کی معاشی حالت سدھارنے یا پھر غریبوں کی حالت بہتر کرنے سے مودی حکومت کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بل کی مخالفت میں پورے ہندوستان میں سب سے پہلے تلنگانہ اسٹیٹ تھا، جو میری صدارت میں سیکریٹریٹ میں تمام علماء کرام یہاں تک کہ مسلم پرسنل لا بورڈ والوں سے بھی پہلے کرے، انہوں بھی اس میں شرکت کرے اور ہم ایک قرارداد منظور کرے کہ یہ بل کی ہم سخت مخالفت کر رہی تلنگانہ حکومت۔ یہ بل نہیں ہونا چاہیے، جبکہ پارلیمنٹ میں رکھنے سے JPC سے پہلے سب سے پہلے ملک میں تلنگانہ کا ہم نے اقدام اٹھایا۔ اس کے بعد جب بل کے اندر سونیا گاندھی جی کی طبیعت ناساز ہونے کے باوجود بھی 4:05 کو راجیہ سبھا میں ووٹنگ ہوئی، تو 4:05 میں بھی سونیا گاندھی جی نے ووٹ ڈالنے کے لیے وہاں ویٹ کرتے رہے۔ راہل گاندھی بھی 3 بجے تک ٹھہر کے، ٹھیک راہل گاندھی تو نوجوان ہے کوئی بات نہیں، لیکن سونیا جی کی طبیعت ناسازی کے بعد بھی پارلیمنٹ میں اتنی دیر رہ کے رہنا اور ووٹ ڈالنا پھر آنا، اور کانگریس پارٹی فرسٹ ڈے سے اس بل کی سخت مخالفت کر رہی ہے۔ میں آپ کے ذریعے ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں ہمارے نوجوان ساتھیوں کو اور خاص طور پر اقلیتی مسلم طبقے والوں کو۔ ملک میں جب سے کانگریس پارٹی کمزور ہوئی ہے، جب سے
भारतीय जनता पार्टी आरएसएस विंग्स जो आगे आए हैं उनका एक ही एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम। गरीबी को हटाने की बात नहीं है, बेरोजगारी को हटाने की बात नहीं है, देश को तरक्की करने की बात नहीं है, देश को हमें माली हालात बनाने के नहीं है। सोना 1 लाख रुपए किलो ये तोला हो गया, तो इस पे उनको नहीं है, उनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम। मैं चाह रहा हूँ मोदी जी, उतना प्रेम क्यों है हमारी मुस्लिम बहनों के ऊपर आपको, जबकि हमारे हिंदू बहनें भी बहुत ही परेशान है, उनकी परेशानी नहीं दिखाई दे रही आपको। ट्रिपल तलाक दिखाई दे रहा आपको, हिजाब दिखाई दे रहा आपको, आर्टिकल 370 दिखाई दे रहा, एनआरसी बोल रहे, यानी तमाम कानून मुसलमानों पर ही लागू करना चाह रहे हैं, एक्सपेरिमेंट पूरा इन्हीं पे करना चाह रहे हैं। इससे देश को नुकसान होगा, देश की एकजहती को नुकसान होगा। मोदी जी ये बंद करो, देश की तरक्की तरफ जाओ। अब रहा वक्फ का बिल, वक्फ की जायदादें सरकार दी से नहीं होते, ये वक्फ डोनर्स जो जिसको अल्लाह ने पैसा दिया गरीबों की मदद के लिए, उसके वक्फ मंशा वक्फ के लिख के वो लोग जमीन डोनेट करो सो है, उसके ऊपर हुकूमत का बड़ापन या हुकूमत की ऊपर नहीं है। जबकि ऑलरेडी ये भी जो वक्फ का इदारा है हुकूमत का ही है, मेंबर्स पूरे हुकूमत। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ आज महमूदाबाद में सियाह पट्टियां बांधकर जामा मस्जिद, महबूबिया तहसील ऑफिस से लेकर नेहरू सेंटर, इंदिरा गांधी सेंटर, गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल और मदर टेरेसा सेंटर होते हुए आरटीसी बस स्टैंड तक जारी रहने वाला एहतजाज अवाम की तवज्जो का मरकज़ बन गया। रामचंद्र नायक एमएलए ने कहा कि वक्फ की जायदादें अल्लाह की मिल्कियत है, जिसको न बेचा जा सकता है न किसी को हवाले किया जा सकता है। मरकज़ी हुकूमत ने वक्फ एक्ट को पार्लियामेंट में पेश करते हुए पास किया, इसको वापस लेने तक हम कानूनी दायरे में रहते हुए जिद्दोजहद करेंगे। मरकज़ी हुकूमत की नज़र हिंदुस्तान भर की वक्फ जायदादों पर है, इसको रोकना ज़रूरी है। महबूबाबाद एमएलए मुरली नायक ने कहा कि सियाह कानून को मरकज़ी हुकूमत जल्द से जल्द वापस ले। मोहम्मद खलील अहमद सदर अक़लियती कांग्रेस महबूबाबाद ने कहा कि आज हिंदुस्तान के कोने कोने में हर जगह वक्फ एक्ट के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जा रही है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट किरण कुमार ने बीआरएस की सिल्वर जुबली तकरीबात का मज़ाक उड़ाया। उन्होंने सवाल किया कि क्या बीआरएस की सिल्वर जुबली है या फिर 2 साल पहले कायम हुई टीआरएस की तकरीब है जिसका नाम आज वजूद में भी नहीं है। किरण कुमार ने केटीआर और साबिका केसीआर हुकूमत पर भी शदीद तनकीदें की। केटीआर first of all has to answer what celebrations he is doing for his party, that is 25-year anniversary he is doing, Rajatsotsavam. Is this for BRS, which is Bharatiya Rashtriya Samiti, which was formed recently 2 years back, or for TRS, which is not existing, which is Telangana Rashtriya Samiti, which was launched, which was started in 2000 or 2001? Which one he is doing? What will be the backdrop of the program? Is it the BRS or TRS? They have removed the sentiment from removing T itself. There is no Telangana. Now it is Bharatiya Rashtriya Samiti. So I don't know what he is doing. And at the same time, he is trying to promote himself and his father as if he is a #1 administrator and agitator. What is the administration, you tell me, Mr. KTR? The surplus budget state has been given to you in 2014. And you have in 10 years you have taken it to the doldrums by making 8 lakh crore loan to the state. Is this the best administrator? We should talk about your father. What else? Constructing a Kaleshwaram project at the cost of 1 lakh crore public money without taking proper administration, without proper administration, not taking the engineer's views. Your father himself, because of people trusting him, want to become everything and he distracted. So KTR talking nonsense day in, day out, trying to blame the Congress which is in rule for 1.5 years, is baseless nonsense. I want to tell KTR to be a constructive leader, not a destructive leader, and talk nonsense. क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने एशियन टीम की तकरीबन 10 सालों तक क़यादत की। आज का दिन उनके लिए अफसोसनाक रहा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की और दुआ की कि दुनिया में ऐसा कोई और क्रिकेटर न हो। ये अल्फाज मुल्क के मारूफ क्रिकेटर अजहरुद्दीन के हैं जिन्होंने ओपल स्टेडियम्स का नाम हटाए जाने का फैसला सामने आने के बाद रद्द अमल में अदा किए। अजहर ने कहा कि वो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के फैसले के खिलाफ अदालत जाएंगे क्योंकि उन्हें अदालत पर भरोसा है। माजी में भी वो अपने खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात को लेकर अदालत से रुजू हुए थे जहाँ उन्हें इंसाफ मिला था।
हज सोसाइटी वरंगल के ज़रिए तमाम आज़मीन हज के लिए तरबियती इज्तिमा एवन कन्वेंशन हॉल अरबी नगर में मुनक़िद हुआ। मौलाना मज़हर क़ासमी ने प्रोजेक्ट की मदद से मकामात हज उम्रा और ज़ियारत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बसीरत अफरोज़ खिताब किया। सरवर मुहिद्दीन गाज़ी ने कहा कि 22 अप्रैल बरोज़ मंगल IMA हॉल रूबरू MGM हॉस्पिटल में टीका अंदाजी का प्रोग्राम रखा गया है। इमाम अफजल मुहिद्दीन, मौलवी मोहम्मद नजमुद्दीन गिलानी, मौलाना मुफ्ती ज़करिया, मौलाना मिनहाज अहमद क़य्यूमी और दीगर उलमाए कराम के अलावा बड़ी तादाद में आज़मीन हज ने शिरकत की। क्या मुनक़िद किया गया है, मौलाना जलगांव से आए हुए मौलाना ने यहाँ पे बयान किया है। मुकामी और बैरूनी मुकामी मौलाना यहाँ पे आए और हज तरबियती कैंप में मनासिक हज और उम्रा तमाम तरबियत देते हुए आज़मीन हज को मुखातिब किया। इसमें हज सोसाइटी के सदर मैं और जनाब नजमुद्दीन साहब, जनाब अफजल मुहिद्दीन साहब, मजिद साहब, जनाब शकील साहब और यहाँ पे तमाम मौजूद हमारे हज सोसाइटी के अहदेदारान ने आज़मीन हज की बड़ी अच्छी खिदमत और खातिरजवादी की है। वरंगल ज़िले से 41, हनमकुंडे से 43 और बाकी जनगांव से 5, महबूबाबाद से 2 और भोपालपल्ली से 2, मुलुक से 2 इन आज़मीन हज यहाँ से रवाना हो रहे हैं। जुमला 110 आज़मीन हज वरंगल ज़िले से मुत्तहिदा वरंगल ज़िले से रवाना हो रहे हैं। इसके लिए हुकूमत तेलंगाना ने खातिर खा इंतजाम सहूलतें की है। चेयरमैन साहब जो इस हज कमेटी के वरंगल ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं, जनाब शुरू पाशा साहब अब्दुल बियाबानी, उन्होंने भी आज़मीन हज की सहूलत के लिए अपनी खातिर खा कोशिश कर रहे हैं कि आज़मीन हज को वहाँ सहूलत दी जाए। इस तरबती इज्तिमा के लिए ख़ास तौर से जनाब मज़हर क़ासमी साहब कोरटलवी को मदऊ किया गया है। ये प्रोजेक्टर के ज़रिए मनासिक हज, उम्रा और आदाब ज़ियारत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफसील से बतला रहे हैं। यहाँ आज़मीन हज इनकी खिदमत से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं और आज़मीन हज इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और उनको इत्मीनान क़ल्ब हासिल हो रहा है। रियासती हज कमेटी के सदर जनाब अफजल बियाबानी खुदरो पाशा साहब क़िबला ने बेहतरीन अज़ला के लिए इंतज़ाम किए हैं, हम उनके मशकूर हैं और ज़िम्मेदार सोसाइटी के ज़िम्मेदारान भी इस प्रोग्राम के इनेकाद के लिए जो शबाना रोज़ हैदराबाद में मनसी इलेक्शन के पेश नज़र पुलिस की हिदायत पर आज शाम 4 बजे से तमाम शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया। ये पाबंदी आ जाने 21 अप्रैल शाम 4 बजे से शुरू होकर 23 अप्रैल शाम 6 बजे तक नाफिज रहेगी। पुलिस के मुताबिक ये फैसला इलेक्शन के दौरान अमन अमान को बरकरार रखने और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए किया गया। इंतजामिया ने शराब फरोशों को सख्ती से हिदायत दी कि इस दौरान कोई दुकान खुली न रखी जाए, बसूरत दिगर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला मेदक में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें 1 साल का शेरखार बच्चा भी शामिल है। इतवार की आधी रात तेज़ रफ्तारी से जा रही 2 कार एक दूसरे से ज़ोरदार टकरा गई। इस हादसे में दोनों कार में सवार 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, 7 दीगर ज़ख्मी बताए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक हादसे में एक कार में बच्चों समेत 9 अफराद सफ़र कर रहे थे, जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद से बताया गया, लेकिन फौरी तौर पर इसकी तफसीलात अभी मालूम नहीं हो सकी। दोनों गाड़ियों की शदीद टक्कर की वजह से 3 अफराद मौके पर ही ख़त्म हो गए। पुलिस फौरी पहुंच गई और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म मोदी मंगल को सऊदी अरब के शहर जिद्दा पहुंचेंगे। 4 दहाइयों में किसी भी वज़ीर-ए-आज़म का जिद्दा का ये पहला दौरा होगा। दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब हिंदुस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में बेहतरी आई है, जो इक़्तिसादी, दिफाई और सखावती पहलुओं समेत अहम नौइयत की जाम शराकतदारी पर मुहित है। हिंदुस्तान और सऊदीया के दरमियान एक मुस्तहकम और कसीर जहती इक़्तिसादी शराकतदारी है, जो हालिया दहाइयों में आला सतह के तबादलों और अहम नौइयत के समझौतों से मज़ीद मुस्तहकम हुई। सऊदी अरब हिंदुस्तान का 5वां सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है, जबकि हिंदुस्तान सऊदी अरब का दूसरा बड़ा तिजारती शराकतदार है। सऊदी अरब से हिंदुस्तान की दरामदात 31 अरब 42 करोड़ अमरीकी डॉलर तक पहुंच गई है, जबकि सऊदी अरब को की जाने वाली बरामदात की मालियत 11 अरब 56 करोड़ अमरीकी डॉलर है। हिंदुस्तान की अहम बरामदात में इंजीनियरिंग का सामान, चावल, पेट्रोलियम मसनूआत, केमिकल्स, टेक्सटाइल, खाने पीने की अशिया भी शामिल है। हालिया बरसों में सऊदी अरब में हिंदुस्तानी सरमायाकारी में भी काफ़ी इजाफा नोट किया गया है।
कांग्रेस के रुकने पार्लियामान राहुल गांधी ने अमेरिका के बोस्टन दौरे के मौके पर महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन को मौजू बनाया। उन्होंने हिंदुस्तानी तारिकीन वतन से खिताब में कहा कि बिल्कुल वाज़ेह कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने समझौता किया है, इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है। राहुल अमेरिका के 2 रोज़ा दौरे पे हैं, वो बोस्टन पहुंचे जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। राहुल ने कहा कि मैंने कई बार कहा है कि महाराष्ट्र में राय दहिंदगान की तादाद से ज़्यादा वोटरों ने वोट दिया। इलेक्शन कमीशन ने हमें शाम 5:30 बजे वोटिंग के आदाद शुमार जो बताया, उसके बाद 65 लाख मजीद वोट डाले गए और 2 घंटे में 65 लाख वोटिंग नामुमकिन है। एक वोटर को वोट डालने में लगभग 3 मिनट लगते हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के इंतखाबात में धांधलियां की गई हैं। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए, जिसके बाद शोक का माहौल है। पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी रहनुमा थे और तवील बीमारी के बाद चंद कबली सेहतियाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे। पोप फ्रांसिस ने इतवार को ईस्टर के मौके पर लोगों से मुलाकात की थी। पेश है इस हवाले से सियासत टीवी की ये तफसीली रिपोर्ट। पोप फ्रांसिस 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने वेटिकन सिटी में अपनी रिहाइशगाह पर आखिरी सांस ली। रिपोर्ट के मुताबिक पोप फ्रांसिस का इंतकाल पीर की सुबह हुआ। ये ऐलान कार्डिनल केविन फॉल ने किया, जो वेटिकन के कामरलिंगो हैं। कामरलिंगो का हुदा ऐसे कार्डिनल से आला दर्जे के पादरियों को दिया जाता है जो पोप के इंतकाल या इस्तीफे का बाज़ाब्ता ऐलान करने के मजाज होते हैं। उन्होंने कहा कि रोम के बिशप पोप फ्रांसिस आज सुबह 7:35 पर यीशु के घर वापस लौट गए। उनकी सारी जिंदगी यीशु और उनके चर्च की खिदमत के लिए वक्फ थी। कल ही ईस्टर की तकरीब में शरीक हुए थे। पोप फ्रांसिस कुछ वक्त पहले निमोनिया का भी शिकार हुए थे और वो इससे सेहतियाब हो रहे थे। इसके बावजूद वो ईस्टर के मौके पर इतवार के रोज सेंट पीटर स्क्वायर में हजारों लोगों को बरकत देने के लिए थोड़े वक्त के लिए सही अवाम के सामने आए और तकरीब में शिरकत की थी। इस मौके पर मौजूद मजमे ने तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल किया। पोप फ्रांसिस ने लोगों को ईस्टर की मुबारकबाद देते हुए कहा कि भाई और बहनों, ईस्टर की बहुत बहुत मुबारक हो। उनकी आवाज़ पहले से ज़्यादा मजबूत महसूस हो रही थी। पोप फ्रांसिस ने ईस्टर की दुआ में शिरकत नहीं की, बल्कि फरीजा सेंट पैट्रिक के बेलिस्का के रिटायर्ड कार्डिनल एंजेलो कोमस्टी को सौंप दिया गया था। लेकिन दुआ के अख्तिताम के फौरी बाद फ्रांसिस बेसिलिका के दाखिली दरवाजे के मौके पर वाक़ई लाजिया बालकनी में नमूदार हुए। पोप फ्रांसिस ने वहां से हाथ हिलाया और फिर अपने एक मुआविन से अपनी तकरीर पढ़ने को कहा था। अमलन ये उनका आखिरी दीदार था और आज सुबह उन्होंने अपनी आखिरी सांस ले ली। पोप फ्रांसिस ने 12 साल तक कैथोलिक चर्च की क़यादत की। वो पहले लातीनी अमरीकी पादरी थे जो पोप के ओहदे तक पहुंचे। वो क़दामत पसंद थे, लेकिन चर्च में तब्दीली भी चाहते थे, लेकिन वो इस्लाहात लाने की उम्मीदें पूरी न कर सके। कैथोलिक चर्च के सरबराह बनने के तकरीबन 12 साल बाद पोप फ्रांसिस आज बरोज़ पीर 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो इस ओहदे पर रहने वाले तारीख के दूसरे मुअम्मर तरीन पोप थे। वो लातीनी अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले पहले पोप और कैथोलिक चर्च के सरबराह बनने वाले पहले यसूई थे। इनसे पहले कभी किसी चर्च के रहनुमा ने अपने लिए फ्रांसिस का नाम मुंतखब नहीं किया था। पोप फ्रांसिस ने शिदत पसंद ग्रुप हमास के साथ अक्टूबर 2023 के हमलों की फौरी मजम्मत भी की और बाद में 12 इसराइली रगमालियों की रिहाई का मुतालबा भी किया, लेकिन वो गजा शहर की छोटी सी मसीही बरादरी की हालात से भी हिल कर रह गए और इसराइल के हमलों की शदीद मजम्मत की। पोप सन 2021 के बाद से सेहत के मसाइल से मुसलसल दो चार रहे और उन्हें कई बार ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वो पहली बार सन 2022 में व्हीलचेयर पर अवाम के सामने नमूदार हुए और अपनी जिंदगी के अख्तिताम तक इस पर इन्हिसार करते रहे। पोप की सबसे ताकतवर और पायदार तस्वीर में से एक वो है जो ईस्टर 2020 के मौके पर ली गई, तब कोविड का वबाई मर्ज फैला हुआ था। इस तस्वीर में पोप फ्रांसिस बारिश के दौरान तन्हा सेंट पीटर स्क्वायर पर दुनिया भर के मसाइब के खात्मे के लिए अपने खुदा से इल्तिजा करते देखे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। ज़ालिम इजरायली फ़ौज ने गज़ा पट्टी के खिलाफ नस्लकुशी की जंग जारी रखी। ज़ालिम फ़ौज ने दर्जनों फ़िज़ाई हमले किए और घरों को ढाया। गज़ा की मुसलसल नाकाबंदी का ज़ालिमाना गैर इंसानी सिलसिला आज भी जारी रहा। ताज़ा इसराइली हमलों में कम से कम 9 फ़लस्तीनियों की शहादत की इत्तला है। इस दौरान 10 फ़लस्तीनी कैदियों को गज़ा में दाखिल किया गया, जिन्हें तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए रेड क्रॉस के ज़रिए अल-अक़सा शुहदा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। खान यूनिस के इलाके मवासी पर बमबारी की गई। काबिज़ फ़ौज के तैयारों ने गज़ा शहर और मशरिक़ी खान यूनिस इलाकों पर भी हमले किए। एक घर पर इसराइली जंगी तैयारों की बमबारी से 5 शहरियों की शहादत हुई, दीगर कई जख्मी हुए। ज़ालिम फ़ौज ने गज़ा शहर के मशरिक़ में मुतादिद मकानात को धमाके से उड़ा दिया। ताहाल फ़लस्तीनी ज़राए के मुताबिक इस जंग में 51,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओसाका एक्सपो में तेलंगाना राइजिंग वफ्द की क़यादत की। आलमी इवेंट में शिरकत से रोशन किया मुल्क का नाम। तेलंगाना हुकूमत ने रबी सीजन के लिए धान की खरीदी का बना लिया मंसूबा। 70 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी का निशाना मुकर्रर। रियासती वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी का बयान।
कांग्रेस के रुकने पार्लिमान किरण कुमार ने बीआरएस की सिल्वर जुबली तकरीबात का उड़ाया मज़ाका, कहा कि क्या टीआरएस की तकरीब है या फिर बीआरएस की। वफ़द तरमीमी एक्ट के खिलाफ महबूबाबाद में हुआ बड़ा एहतजाज, मुजाहिरीन ने मोदी हुकूमत के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी मंगल को सऊदी अरब के शहर पहुंचेंगे जिद्दा। 4 दहाइयों में किसी भी हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का जिद्दा का पहला दौरा, इक़्तिसादी ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम की उम्मीद। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन पर राहुल गांधी ने फिर उठाए सवाल, अमेरिका के बोस्टन में किया अवाम से खिताब। और कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए, मसीही बरादरी में शोक का माहौल। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़।